Good morning, students. I think after a long time we have met. We are facing the corona crisis. Sometimes some person treat it is a bad time, but on my point of view, you think that it is a very good time to judge ourselves, to introspect ourselves, and to do something different. Dear students, after time, you have chance to select the stream. Non-medical. Decide what you want to be. You want to be an excellent engineer, या you want to be an excellent aeronautics, या you want to be a super scientist, then decide it. If you are interested in medical science, so you can prove yourself best. And if you want to be a CA, economist, cost work accountant, so you must do commerce. If you want to serve the nation, IAS, IPS, IFS, many foreign service, so decide. One thing I want to tell, in foreign country, a student get the chance to choose the stream after 6 onwards. But in India, a student get the chance to select the stream after 10th class. It means it's your own decision what you want to be. Where is your destination? Where is your success? It depends on you. None can inspire you. You are the self-soul motivator for yourself. Decide. I am not forcing you कि you may choose medical. I am not enforcing you कि you may choose commerce. Yeah. Every stream has its own importance. If you get the example of arts, search on the Google, you find top 50 IAS officers, IFS officers belong to this stream. These are those students who score average 50 to 70%. Choose this. If in the technical world like Germany, USA, Italy, India, Japan, most students belong to this person, IIT Delhi, IIT Mumbai, यानी Indian IIT, most superb institute in the world, and in medical aims. So first of all, decide yourself. Choose your career. Decide yourself, choose your career. You can take the guideline of your teacher, but you can't follow the instructions of anyone because career is only and only yours. You have to decide where to reach. It not depend on me. I can only guide where you have to go and live in that particular career. One thing I want to explain most clearly. Everyone works for success, and success requires motivation, or motivation requires temptation. In Hindi, I want to clear explain. जिंदगी में हर मनुष्य सफलता के लिए काम करता है. ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो असफलता के लिए काम करना. ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो मेहनत करता हो कि मैं फेल हो जाऊं. ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो चाहता है कि मैं खूब अच्छी मेहनत करूं और मेरे सबसे क्लास में कम नंबर आए. शायद आप सोच रहे हो कहाँ पहुंच गया. पहुंचे कहीं नहीं. 3 चीजें बताई मैंने, सक्सेस, मोटिवेशन और टेम्पटेशन. जहां आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं. बहुत ही प्रैक्टिकल स्टोरी है, रियल इंसिडेंट है. एक बच्चा हाई स्कूल में पढ़ता है. घटना जर्मनी की है और हाई स्कूल के बाद वहां कॉलेज स्टार्ट हो जाता है. डियर स्टूडेंट्स,
तो हाई स्कूल में जब ये बच्चा जाता है अपने घर से होम टू स्कूल, तो बीच में एक किसी कार कंपनी का शोरूम पड़ता है। उस शोरूम में उस बच्चे को एक कार पसंद आ जाती है। टीनेज एज ही ऐसी है जिसमें हम डिजायर्स की ओर दौड़ते हैं, वांट्स की ओर दौड़ते हैं, हर तरफ दौड़ते हैं। तो इस बच्चे को कार पसंद आई, तो इसने शाम को आते अपने पापा से कहा, पापा आई वांट दिस कार। कि आफ्टर हाई स्कूल आई हैव टू ज्वाइन कॉलेज, और इन कॉलेज एवरी स्टूडेंट्स कम बाय हिज ओन व्हीकल। कॉलेज में हर बच्चे की अपनी डिजायर होती है। कोई बाइक से आना पसंद करेगा, किसी को बुलेट अच्छी लगती है, किसी को यामा अच्छी लगती है, किसी को गाड़ी अच्छी लगती है। हर बच्चे का अपना अपना पैशन होता है। तो इसने कहा कि मुझे आफ्टर स्कूल आई वांट दिस कार। तो इसके फादर ने इसे प्रॉमिस किया कि इफ यू हैव टॉप द क्लास, अगर आपने क्लास को टॉप कर दिया, अगर आपने क्लास को टॉप कर दिया, तो दिस कार इज योर्स, ये कार आपकी। अब बच्चा रोज स्कूल जाता, जब उसे वो शोरूम नजर आता, शोरूम में वो कार नजर आती है, कार नजर आती है, उसके दिमाग में आता है कि कार कब मिलनी है, जब क्लास को टॉप करेगा। यानी एक टेम्पटेशन उसको मिल गया है। उस टेम्पटेशन से मोटिवेशन आया कि मुझे टॉप करना है। और इस बच्चे ने काफी मेहनत की, और इस बच्चे ने क्लास को ही नहीं, पूरे स्कूल को ही टॉप कर दिया। और टॉप कर दिया तो ऑब्वियसली बात है, प्राइज मिलना है, उसको गिफ्ट मिलना अपने डैडी की, और फिर डैडी के पास पहुंच गए। बोला, डैडी डैडी, I have topped the class. I have completed my promise. Now it's your turn to complete the promise. अब सोच कीजिए कि इसके डैड ने क्या गिफ्ट दिया होगा। बच्चा बहुत एक्साइटेड था, ड्रीम्स पूरे होने जा रहे थे, जीवन की पहली कार मिलने जा रही थी उसको। लेकिन उसके फादर ने क्या कहा, डियर टेक दिस बाइबल एंड रीड। क्रिश्चियन था, बोले ये बाइबल लो और इसको पढ़ो। आप इतनी मेहनत करो, आप टॉप कर जाओ, और आप अपने पापा को, पापा आपने प्रॉमिस किया था स्कूटी, और आपके पापा के बेटा ये ले रामायण, ये ले भगवत गीता, और आराम से पढ़ ले। क्या बीतेगी आपके ऊपर। इस एज में एंगर और एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। एंगर और एग्रेशन बहुत ज्यादा। तो बच्चे ने घर छोड़ दिया। उसने कहा मैंने टॉप किया, पापा के ड्रीम को फुलफिलमेंट किया, और पापा ने मुझे एक बाइबल पकड़ा दी, और ये बच्चा जर्मनी को छोड़कर यूएसए में आ गया। अमेरिका के अंदर आ गया, और डिसाइड किया, बच्चे की डिजायर देखना, कार के लिए था उसकी सारी चीजें। उसने डिसाइड किया कि वो यूएसए में एक कार कंपनी खोलेगा। देखो, बिल कैस्टल इन द एयर वाली बात नहीं थी इस बच्चे के अंदर। कार कंपनी, इतने पैसे थोड़ी थे, घर छोड़ के गया है, कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले इस बच्चे ने एक गैरेज के अंदर काम करना शुरू किया। अच्छा काम किया, अच्छी मेहनत की। 10 ईयर्स में उसने एक खुद की कंपनी खड़ी कर दी यूएसए में, और जिसका नाम है जनरल मोटर्स। जनरल मोटर्स का फाउंडर था ये बच्चा, स्टीफन। जब एक इंसान खुद पैसे कमाता है, तब उसको अहमियत समझ में आती है कि हाउ द मनी कम इनटू आवर पॉकेट, हाउ मच टॉयल वी हैव टू डू फॉर दैट लेबर। पैसे बहुत हो गए। जनरल मोटर्स अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी, उसका ये फाउंडर। अब इसने मैंने ही सोचा, देयर मे बी एनी प्रॉब्लम ऑफ माई फादर, मे बी एनी नीड ऑफ माई फादर। शायद पापा की कोई मजबूरी रही होगी कि वो मुझे गाड़ी नहीं दे पाए। और 10 साल बाद उसने डिसाइड किया, रिटर्न बैक टू जर्मनी। जर्मनी जाया जाए, पापा से मिला जाए, और पापा से अपोलोगाइज किया जाए,
पूछा जाए पापा क्यों नहीं दे पाए, इतने साल मैं आपसे दूर हूँ। जब वो डिसाइड कर रहा था, ऑन दैट टाइम ही गॉट ए टेलीग्राम। ये कोई इंडियन मूवी का क्लाइमैक्स नहीं है, उसे टेलीग्राम मिलता है और टेलीग्राम के अंदर एक चीज नोटिस थी, हिज फादर वाज नो मोर। उसके पापा इस दुनिया में नहीं। स्टीफन स्ट्रक हो गया, पापा दुनिया में नहीं है। लॉस किसी का जाने का बहुत बड़ा लॉस होता है, इंडिविजुअल फील कर सकता है। वी कांट फील द इमेजिनेशन ऑफ एनीवन हाउ मच ही हर्ट। अब स्टीफन जर्मनी जाता है और उसने देखा शायद लास्ट डिजायर थी मेरी फादर की, मेरे पापा की, कि मैं उस बाइबल को पढूं। तो आराम से जाके उसने उस बाइबल को उठाया, फर्स्ट पेज को ओपन किया, और फर्स्ट पेज को ओपन किया तो देयर वाज एन एनवलप इन इट। उसके अंदर एक लिफाफा था। स्टीफन ने उस लिफाफे को खोला। डियर स्टूडेंट, सरप्राइज करोगे कि देयर वाज ए की ऑफ ए कार इन इट। इसके अंदर एक कार की चाबी थी। ऑन दैट टाइम दैट स्टीफन वेप्ट ए लॉट। उस दिन स्टीफन बहुत रोया। वर्डिंग क्या कहना उसका, एक ही बात की कि काश उस दिन में बाइबल को खोल लेता, इस एनवलप को भी खोल के देख लेता, तो मुझे मेरी चाबी मिल जाती। और आज जो मैंने जर्मनी की बजाय अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी कंपनी खड़ी कर दी है, जनरल मोटर्स, वो जर्मनी की होती, लेकिन डिसाइड नहीं किया। हमारे एल्डर्स, दे आर ऑलवेज राइट, दे नेवर रॉन्ग। वो कभी गलत नहीं होते। हमारे बड़े कह के जाते कि हर किसी के भाग्य की चाबी कहीं ना कहीं है। वो सच में है। स्टीफन के भविष्य की चाबी उस बाइबल के अंदर थी, उस लिफाफे के अंदर थी। कोई खोल के तो देखे, लेकिन नहीं देखा। बहुत पछताया। और आज इस शख्स को पूरी दुनिया याद करती है, जिसने यूएसए की इतनी बड़ी कंपनी। तो कहने का मतलब एक है डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है, डिसाइड आपको करना है। आपके पेरेंट्स आपको गाइड कर सकते हैं, आपका टीचर आपको गाइड कर सकता है, लेकिन आपके फ्यूचर को सर्टेन नहीं कर सकते हैं। फ्यूचर आपके हाथों में सर्टेन करना। हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है, आज मैं खुल के बोलता हूं इस बात पे। हम टीचर को मानते हैं, टीचर की नहीं मानते। आपके फिजिक्स के सर हैं, पंकज जी हैं, अनिल जी हैं, रमन सर हैं, आप इनको मानते हो, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बात क्या बताते हैं उसको नहीं मानते हैं। और ये पूरे हिंदुस्तान की समस्या, हम भगवान को मानते हैं, गॉड एग्जिस्ट। खूब मूवी देखी आपने, पीके देखी है, बड़ा अच्छा लगता है, 3 इडियट देखिए, बड़ा अच्छा लगता है। भगवान के लिए कितनी बटरिंग करते हैं कि मेरी फिजिक्स संभाल लेना, मैं ये प्रसाद चढ़ा दूंगा, बड़ा अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। मुझे प्रैक्टिकल सोचिए ना, कि क्या हम जिस भगवान को मानते हैं, क्या उसकी बात भी मानते हैं? नहीं ना। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी है, हम मानते तो हैं लेकिन जानते नहीं हैं। हम भगवत गीता को तो मानते, लेकिन भगवत गीता की नहीं मानते, उसके अंदर लिखा क्या है। जिस दिन इस बात को समझ जाओगे, यानी ए डे व्हेन यू अंडरस्टैंड द इनसाइड स्टोरी, योर स्टोरी विल बी चेंज, योर लाइफ विल बी चेंज, यू बिकम द world icon, not the youth icon. You will become the world icon for everyone. And don't read the subject, feel the subject. सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं चाहिए, फील करके देखिए। मैं लैंग्वेज का टीचर हूं, मैं लिटरेचर और ग्रामर को फील करता हूं। एक लैंग्वेज का बहुत छोटा सा टॉपिक है ग्रामर का, जो मैं आपको आज डिस्कस करूंगा, और फील कैसे करता वो देखिए। एक टॉपिक है वर्ब, वोकल,
emphasis, writing, broadcast, वोकल साउंड, हमारी ये चीजें होती है वोकल जो आवाज निकलती है। एम्फेसिस जोर डालना, राइटिंग लिखना। आप कहोगे सर यहाँ तो आ रहा है लेकिन यहाँ डब्ल्यू क्या है, क्योंकि यहाँ डब्ल्यू साइलेंट है। अब्रॉड आपको पता है चौड़ा, विड्थ उसको बोलते हैं कास्टिंग, प्रसारण करना, यानी जिस चीज को आप प्रभावी ढंग से बोल सकते हो, लिख सकते हो और उस बात को दूर दूर तक फैला सकते हो, डेट इज वर्ब। लेकिन हमने तो डेफिनेशन पढ़ ली इंग्लिश में या हिंदी में पढ़ ली, जिस शब्द से किसी काम का होना या ना होना पता चले वो क्रिया है। इंग्लिश में भी हम ये कहेंगे वर्ब इज दैट थिंग दैट एक्सप्रेस द फीलिंग, एग्जिस्टेंस एंड एक्शन। डेफिनेशंस को क्रेम मत कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, उसको फील कीजिए, सी कीजिए, बात कीजिए। मैं जिंदगी में हर चीज को, लिटरेचर को देखता हूं, मैं ग्रामर को देखता हूं। अब देखिए इस चीज से क्या सीखा मैंने। वोकल आवाज है, उस आवाज को प्रभावी ढंग से लिख सकते हैं और उस बात को दूसरों को बता सकते हैं तो वर्ब है। अब तीन चीजें बताई वर्ब में। एक्शन, फीलिंग एंड एग्जिस्टेंस। What is action? That you do, that is action. मेरा एग्जाम्पल लीजिए, मैं आपका एग्जाम्पल बहुत बाद में बताऊंगा। स्टैंड, अभी मैं खड़ा हूं, पहला एक्शन। दूसरा एक्शन आपके सामने मेरा काम, राइट, लिखने का भी। तीसरा एक्शन आई एम वॉचिंग यू, मैं आप लोगों को भी देख रहा हूं। और चौथा एक्शन थिंकिंग, सोच भी रहा हूं। वन मैन बट एक्शन इज मैनी। आदमी एक काम कितने चल रहे हैं, आप भी इस समय एक्शन में हो। कई बार कहते ना बड़े एक्शन में हो। आप उस चीज को एक कमेंट मत मानिए, वो एक ग्रामर है। आप सभी एक्शन में हो। सीट, आप बैठे हुए हो, पहला एक्शन। सेकंड एक्शन वॉच, आप मुझे देख रहे हो। थर्ड एक्शन यू आर लिसनिंग मी, आप मुझे सुन भी रहे हो। किसी ने कान में उंगलियां तो नहीं लगा रखी है, नहीं सुनना है सर को। और फोर्थ थिंकिंग, सोच भी रहे हो कि सर बोल क्या रहे। यही तो एक्शन है। अब इसके लिए रटना थोड़ी हमें। अब देखिए हमारे पैरों के एक्शन है। स्टैंड, चलने लगे तो वॉक, दौड़ने लगे तो रेस, और कूदने लगे तो जंप, और एक पैर को आपने मूव किया तो वो किक हो जाए। कि कोई मूवी मत ले जाना बेटा। या देखिए वही सेक्शन बताता हूं आपको। किसी को मैं बता रहा हूं वो चीजें टैग, बातें करने लगा तो कहने लगा तो स्पीक, और गाने लगा तो सिंग, और चिल्लाने लगा तो क्राई, और रोने लगा तो पीप, और हंसने लगा तो लाफ। आवाज वही है, एक्शन कितने हो गए? तो फील द एक्शन इन योर एवरीडे लाइफ। खाना खाते हो, ईट, फिर आप रेस्ट करने लगते हो, डेट इज आल्सो एक्शन। लेट जाते हो, नींद नहीं आती, लाई, लेटना, डेट इज आल्सो एक्शन। आंखें बंद हो गई, स्लीप, डेट इज आल्सो एक्शन। सोने के बाद आपको सपने आते हैं, ड्रीम, डेट इज आल्सो एक्शन। सपने देखते हो वो एक्शन ही तो है, ड्रीम आ रहे हैं आपको। 24 आवर्स इंटू 365 डेज ए पर्सन इज ऑलवेज इन एक्शन। हम किसी को आलसी नहीं कह सकते हैं, ये तो हमने कंडीशंस बना दी हैं। आदमी हमेशा एक्शन में रहता है, कि वो बैठा हो, खड़ा हो, सोच रहा हो, या हमारी इनहेल एक्सेल, सांसों का चलना, वो भी एक्शन है। आप सोते हो तब भी आपका एक्शन चलता रहता है। दूसरी चीज हमने ली फीलिंग।
क्या महसूस करते हो आप? महसूस करना, ये चीज फील होंगी, सी नहीं कर सकते, वॉच नहीं कर सकते। ठंड है बहुत ज्यादा, तो आप ये कहोगे ना, आई ट्रेमलिंग, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। क्या कभी किसी से सुना है कि मैंने ठंड को देखा है? ठंड तो ग्रीन कलर की होती है, येलो कलर की होती है। यू फील हंगर, भूख लगती है। प्यास लगती है आपको, महसूस होती है, गला सूख जाता है, या किसी ने कहा कि नहीं जी मेरी प्यास तो नीले रंग की है, नहीं जी मेरी प्यास तो हरे रंग की है। कोई नहीं कहता ना, ये आप फील करते हो। कई बार आप उदास हो जाते हो, कई बार आप बड़े एक्साइटमेंट में हो, तो क्या होने वाला है, यानी व्हाट यू फील इन योर माइंड, इन योर हार्ट, दैट इज फीलिंग। लेकिन तीसरी चीज एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, ये हमेशा एक्शन से आता है। बहुत ही आसान शब्दों में बताऊं मैं अगर आपको, आप लोग एक काम कर रहे हो, स्टडी, तो यू आर कॉल्ड स्टूडेंट। स्टूडेंट कहलाए तो आपकी पहचान आपके एक्शन से है। मेरा काम इस समय टीच करना, तो मेरी पहचान किसके रूप में है? एग्जिस्टेंट, टीचर। एक फार्म, खेत में काम करने वाला, क्या कहना है? फार्मर। सिंग करने वाला, सिंगर। और डांस करने वाला, डांसर। इंग्लिश में बहुत छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती है कि हम कहते हैं वह एक अध्यापक है, इज ए टीचर, और ये पूछ लिया जाता है व्हाट इज टीचर, और दिमाग में तुरंत चीज आती है नाउन है टीचर, तो क्योंकि रटी हमने नाउन। लेकिन आपसे दूसरे पूछ लिया जाए कि यह टीचर किसको एक्सप्रेस कर रहा है, ये किस वर्ब को शो कर रहा है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए एग्जिस्टेंस को शो कर रहा है, क्योंकि वर्ब के काम ही तीन है, एक्शन, फीलिंग और एग्जिस्टेंस। मैंने आपसे वो कोई चीज नहीं कही है जो आपने ऑलरेडी पढ़ी है। प्रैक्टिकली जो देख रहे हो वही लाइफ में होती है बेटा। प्रैक्टिकली इमेजिनेशन करते हो, दैट हैपन, दैट रियलिटी, एंड नॉट हैपन, दैट बिकम नॉनसेंस। आपने कल्पना की और वो चीजें सही हो गई तो वो सही है, इमेजिनेशन की, सही प्रूव नहीं हुई तो दैट बिकम नॉनसेंस। जिस समय राइट बंधु प्लेन बनाने की सोच रहे थे, ग्लाइडर बनाने की सोच रहे थे, कितनी दिमाग में उनकी चीजें आई। एक स्पैरो को ऑब्जर्व किया, चिड़िया को ऑब्जर्व किया कि वो कीट पतंगे, इंसेक्ट्स खाती है, इसलिए हवा में उड़ती है, तो राइट ब्रदर्स ने भी कीट पतंगे खाने शुरू कर दी। नॉनसेंस एक्टिविटी थी ना। अगर जानवरों को खा के ही इंसान उड़ सकता है तो सबसे पहले तो शेर उड़ना सीख जाएगा, क्योंकि वो विंग्स वाले जो बर्ड्स उनको भी खाता है। तो किसी चीज के करने से नहीं आएगा। चाइनीज थ्योरी डेवलप नहीं करनी है दिमाग में, सिर्फ प्रैक्टिकल थ्योरी डेवलप इन योर माइंड। व्हाट यू थिंक दैट यू बिकम। अब यहां सबसे छोटी सी बात बताता हूं आपको। हमने एक्शन को समझा है, जबकि आपको पता है फीलिंग्स में भी एक्शन होता है, क्योंकि भूख लगती है, डाइजेस्ट होगा तभी तो लगेगी। प्यास लगती है, थ्रोट बिकम ड्राई, गला सूख जाता है तभी तो लगेगी। और एग्जिस्टेंस भी एक्शन के करने से आता है। अगर यहां मैं वर्ब का दूसरा नाम एक्शन दे दूं तो भी कोई बड़ी बात नहीं। अब यहां देखिए, एक ही सिक्के के दो पहलू लगेंगे आपको, वर्ब एंड एक्शन। लेकिन एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं है। वर्ब के अपने टाइप्स होते हैं और एक्शन के अपने टाइप्स होते हैं। कई जगह आपने इनको काइंड सुना होगा। सीखिए इस चीज को। टाइप्स का मीनिंग ये होता है कि आपको लिख के बताना होता है, और काइंड्स आपको बोल के बताना होता है। इंटरव्यू में आप लोगों से पूछ लिया जाता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, और आप इतने इंटेलिजेंट होते हो, आपका कुछ सर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन,
इंटरव्यू वाला आपसे पूछ रहा है कि टाइप्स, इसका मतलब आपको लिख के बताना है, बट यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड। हम छोटे बच्चे थे, हमें सेकंड क्लास में पढ़ाया गया था कि भाषा किसे कहते हैं, लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हम एक दूसरे के विचारों को समझ सके। लेकिन इंटरव्यू में जिसने वो चीज़ पूछी हम तो समझ ही नहीं पा रहे, उसने टाइप्स पूछे हैं, हम राइट करके बता रहे हैं। और काइंड्स का मीनिंग होता है बोल के बताना। अब वर्ब्स के अपने टाइप्स हैं जो आप लोगों ने पढ़े हैं, ट्रांजेक्टिव वर्ब, इंट्रांजेक्टिव वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब। So dear students, next topic we explain in our next class. What you feel, also explain me and share your views with me. Thank you. Have a nice day.